Hello, good afternoon, student. Myself, Hiral Raval. Today's date 25th September 2020. Okay, chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. Okay, student, in previous lecture, we have studied the sexual organs, right? We have studied the reproductive phase life in humans. हमारे जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसमें जो है ह्यूमंस में, जैसे कि मेल की बात करें तो मेल में प्रोजेस्टेरॉन्स है, और जो फीमेल है उसमें मेल जो है उसमें टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो सिक्रेट होता है, और जो फीमेल होती है उसमें जो हार्मोन्स है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता है। ओके, देन हम पढ़े थे हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमिन। पहली, आई हर्ड माई मदर एंड माई aunt talking about my cousins who is going to have a baby. They were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. I wondered what makes the fertilized egg develop either into a boy or a girl. Okay, boy और girl हो वो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्रोमोसोम्स होते हैं, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग. Inside the fertilized egg or zygote is the instructions for determining the sex of the baby. जो क्रोमोसोम्स है वो डिपेंड जो होते हैं वो डिसाइड करता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा. Recall from chapter number 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. All humans beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. Two chromosomes out of these are the sex chromosomes. जिसमें ये दो chromosomes होते हैं वो sex chromosomes होते हैं, named X and Y. A female has two X chromosomes. Female जो होती है उसमें two X chromosomes होते हैं, while a male has one X and one Y chromosomes. और जो मेल होता है उसमें एक X और एक Y chromosomes होते हैं. The gametes, egg and sperm, have only one set of chromosomes. जो मेल होते हैं उसमें ओनली एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम्स होते हैं. द अनफर्टिलाइज एग ऑलवेज हैज़ वन एक्स क्रोमोसोम. जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसमें ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. बट स्पर्म्स आर ऑफ टू काइंड्स. बट जो स्पर्म्स होते हैं वो टू काइंड्स ऑफ स्पर्म्स आते हैं. वन काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स में एक्स क्रोमोसोम्स होता है, and the other kind has Y chromosomes. See figure 10.4. Okay. See figure 10.4. When a sperm containing X chromosomes fertilizes the egg, the zygote would have two X chromosomes and developed into a female child. जो zygote होता है उसमें female child, because जो गर्ल्स बेबी गर्ल्स होती है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं. सपोज मेल का एक्स क्रोमोसोम्स वहाँ पे फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, बॉय है ना, एक्स एक्स तो बॉय एंड एक्स वाई तो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई तो बॉय, एक्स एक्स तो गर्ल्स. इफ द स्पर्म contributes a Y chromosomes to the egg ovum at fertilizations, the zygote would develop into a male child. Zygote जो है वो male child पे develop हो जाता है. Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. Okay? फादर के जो जीन्स होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है बेबी के लिए. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong, and to blame her for this is totally unjustified. Then 10.7, look at figure 10.3 again. The hormones secreted by the pituitary stimulate testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain.
apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. ये जो तीनों हॉर्मोन्स हैं यहाँ पे सिक्रेट होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे ब्रेन में है, देन थायराइड ग्लैंड हमारे चॉट में है, ओके। एड्रिनल ग्लैंड, लुक एट द एड्रिनल ग्लैंड, देन पैंक्रियासिस, पोजीशंस ऑफ द ओवेरी, ऑफ द फीमेल एंड टेस्टिस, ओके स्टूडेंट। So Bujo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka and a very big and bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland. Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. तो यहाँ पे डायरेक्ट में दिया है, मीन्स कि वो थायरोक्सिन नहीं लेते होंगे, ओके। देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज बिकॉज हिज पैंक्रियासिस वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज. Bujo and Paheli then asked their aunt about the adrenal glands, which are also shown in the chart hung on the wall of a clinic. The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. Adrenals also produce the hormone adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried. Thyroid and adrenals secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. Pituitary also secretes growth hormone, which is necessary for the normal growth of a person. पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो नॉर्मल ग्रोथ के पर्सनस में, नॉर्मली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मेन जो सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड. हाँ, आर देयर हॉर्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन? हाँ, ओके, अदर एनिमल्स में भी ऐसे सेक्शुअल पार्टनर्स के सेक्शुअल ऑर्गन्स होते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ 10.8 Role of hormones in completing the life history of insects and frogs. You have already learnt about the life history of the silk moth and the frog. Okay, frog और silk moth की हमने life history देखी है. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. Recall from class 7th the stages of the life history of the silk moth. Similarly, the tadpole passes through certain stages to become a frog. हमने चैप्टर 9 में देखा है, ओके, टैडपोल का. ओके, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. चैप्टर नंबर 9 उसमें हम देखते हैं टैडपोल. ये रहा, ओके. ये वाला डायग्राम देखो, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. ओके, सबसे पहले एग्स होते हैं, फिर अर्ली टेडपोल होता है, फिर लेट टेडपोल एंड लास्ट में एडल्ट फ्रॉग बन जाता है. ओके, चैप्टर नंबर 9 में हमें वो रिवाइज कर दिया. ओके, दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज़ कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है. व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस? ओके, देन मेटामॉर्फोसिस in insect is controlled by insect hormone. In a frog, it is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid. Thyroxine productions जो होता है धीरे धीरे थायराइड प्रोड्यूस हो जाता है. थायरोक्सिन प्रोडक्शंस requires the presence of iodine in water.
If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. Tadpoles कभी बड़ा नहीं हो सकता है. If people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by lack of thyroxine? पीपल में थायरोक्सिन की कमी हो तो उनको गोइटर हो सकता है. एक्टिविटी 10.3 collect informations from magazines or from doctors and prepare a note on the importance of consuming iodized salt. हमें डॉक्टर का प्रिकॉशन लेके हमें आयोडीन वाला नमक ही लेना चाहिए. यू कैन ऑल्सो लुक एट दिस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. आप इंटरनेट से भी इसकी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट. देन 10.9 टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ. व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual health. Okay. To maintain reproductive health, the physical and mental well-being of an individual is regarded as an individuality's health. To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. ओके हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए. द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडवेटेड फिजिकल एक्सरसाइज. ड्यूरिंग एडोलेंसेस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग. हमारी बॉडी जब ग्रोइंग होती है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो एडोलेंसेस एज में हमारा डाइट बैलेंस होना चाहिए. हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए. Then nutritional needs of the adolescence. Adolescence is a stage of rapid growth and development. Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned. You have already learned what a balanced diet is. हमें पता है कि बैलेंस डाइट क्या है. हम पहले पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ बैलेंस डाइट. ओके. रिकॉल दैट बैलेंस डाइट ओके. रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में हमने देखा. ड्यूरिंग एडोलेंसेस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग. न्यूट्रिशनल नीड्स हमारी क्या होनी चाहिए? न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए हमें ओके स्टूडेंट. न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेंसेंट. Adolescent is a stage of rapid growth and development. Hence, the diet for man adolescence has be carefully planned. ओके. एडोलेंसेस जो पीपल होते हैं जो ग्रोइंग, उनका ग्रोथ पीरियड वो है, तो उनको जो डाइट प्लान है वो ठीक से करना चाहिए. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस डाइट इज़. ओके. Recall that a balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrates, fats, and vitamins in requisite properties. Our Indian meal of roti, rice, dal, and vegetables is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Milk तो है अपने आप एक balanced food है. Fruits also provides nourishment. Fruits में भी बहुत सारा nourishment होता है. आप एप्पल खाते हो, चेरी खाते हो, बनाना खाते हो, है ना. हर एक फूड से हमें न्यूट्रिशंस मिलता है. फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइडेड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड. मदर्स के मिल्क में तो सारा नरिशमेंट होता है. आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, साइट्रस, इंडियन गूसबेरी मीन्स के आंवला आर गुड फॉर एडोलेंसेस. ये जो सारे चीज़ है वो हमारे एडोलेंसेट के लिए अच्छी है. चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील. आपके डिनर और मील का आप जो है वो अपने डिनर में लेते हो कि नहीं? हमें लेना ही चाहिए. ओके. दूध तो एकदम अच्छा, मिल्क तो एकदम अच्छा है बॉडी के लिए. इज़ द meal balanced and nutritious? Yes, obviously. Does it include the cereals which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide proteins for growth? तो ये सब में से हमें प्रोटीन्स मिलता है ना. ऐसा नहीं है हम मिल्क लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, मीट, नट्स, जो भी हमें ज़रूरी है वो हमें बॉडी में लेना चाहिए.
ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी। ओके, शुगर्स और फैट्स जो है वो भी हमें बॉडी को एनर्जी देती है। यस, ऑब्वियसली वो देती है। वॉट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स? कौन से ऐसे फूड्स है जो प्रोटेक्टिव हैं? ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है चिप्स एंड पैकेट और टिन स्नैक्स थ्रू वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव अ एडवोकेट न्यूट्रिशियस वैल्यू। है ना, चिप्स खाना है, पैकेट खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, वो हमारे लिए न्यूट्रिशंस नहीं है, वो बॉडी को न्यूट्रिशंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, another activity, activity 10.4, make a group with your friends, write down the items of food in your breakfast, lunch and dinner you had on the previous day. Identify the items responsible for proper growth. Also identify the junk food that you consumed the previous day. हमें एक चार्ट बनाना है कि हमने आज क्या खाना खाया। ओके, और कितने हमने जंक फूड बॉडी में डाले, वो आपको एक चार्ट बनाना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप डेली रूटीन में आप कैसा खाना खाते हो। ओके, देन एक्टिविटी 10.5, गेट आइडियाज फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन इन फिगर 10.6। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है 10.6। प्रिपेयर चार्ट ऑफ और posters and paste them in the class so that you are aware of the diet for adolescents। हमें चार्ट, एक मैंने बोला ना आपको एक चार्ट रेडी करना है। ये सब आपको पिक्चर्स दी है, वो देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या खाना खाना चाहिए। यू आर अवेयर ऑफ द डाइट फॉर एडोलेंसेंट, यू मे यूज़ योर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड प्रेजेंट इट like an advertisement, you may even organize a competitions on this topic। है ना, यहाँ पे दिया है देखो, मीट जो है, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो तो मीट नहीं खाते हैं, है ना। फिर वेजिटेबल्स दिया है, फ्रूट्स है, देन मिल्क एंड एग्स है। फिर यहाँ पे अलग अलग ग्रेन्स है, न्यूट्रिशनल आइटम्स फूड है ना, अलग अलग ग्रेन्स डायग्राम में दिए हैं। आप क्या खाना खाते हो रूटीन में, ठीक है, वो आपको एक टेबल बनाना है। ओके, देख लीजिए। बनाना है, ऑरेंज है। देन यहाँ पे बात की है पर्सनल हाइजीन की। व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन? Everyone should have a bath at least once every day. It is more necessary for teenagers because their increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly. All parts of the body should be washed and clean every day। है ना, हमें सारे पार्ट जो बॉडी के हैं वो क्लीन करने चाहिए। Everyday cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infections. गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। गर्ल जब एमसी पीरियड्स में होती है तो उसको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ओके, देन दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उसको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। फिजिकली एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। हमें एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, है ना। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है माइल्स, टैबूस, डज एंड डोंट इट्स। यू हैव लर्न हियर एंड फ्रॉम चैप्टर 9 द साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देर आर मैनी रॉन्ग notions which you should now be able to discard as informed adolescent. For example, there are myths and taboos regarding bodily changes that adolescents exercise. Some of these are given below and you can now argue why these are myths and not facts. First लिखा है girl becomes pregnant if she looks at boys during menstruation। ये रॉन्ग बात है ना। कोई जो गर्ल्स है प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे कोई बॉयज़ को देखे, ये गलत बात है। द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, वेरी रॉन्ग है ना। फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ हर चाइल्ड।
अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस। ओके, ये भी एक माइथस है। यू मे कम अक्रॉस मैनी अदर माइथ्स एट टेबूस डिस्कार्ड देम। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं। ओके, हाँ, देन यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी 10.6, कलेक्ट डेटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास हु एक्सरसाइज रेगुलरली एंड हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली। जो बच्चे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका चार्ट बनाओ, और जो रेगुलर नहीं करते हैं उनका आप चार्ट बनाइए। एंड वाई डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली, डिड यू नोटिस एनी डिफरेंट इन देयर फिटनेस एंड हेल्थ, प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। हम देख सकते हैं जो बच्चे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके बॉडी जो है वो फिट रहते हैं, है ना। देन यहाँ पे लिखा है से नो टू ड्रग्स। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इंक्रीज, है ना। एडोलसेंस एक ऐसी एज है जिसमें हमारे जो माइंड को पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। If anybody suggests that you will get a relief if you take some drugs, just say no. Okay? कोई आपको ऐसा बोले कि चलो आप एक ड्रग्स लेना चालू करो तो आपका माइंड अच्छा वर्क करेगा, तो ये बात गलत है, आपको नो बोलना चाहिए। अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, डॉक्टर ना बोले तब तक कोई हमें ड्रग्स लेने नहीं चाहिए। ड्रग्स आर एडिक्टिव, इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। ड्रग्स एक ऐसी बात है कि आप एक बार सपोज ड्रग्स लेना स्टार्ट करोगे तो आपको बार बार उसकी ज़रूरत होगी, है ना। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, दे र्यून हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ड्रग्स हमारी बॉडी की हेल्थ में बहुत इफ़ेक्ट करती है। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस HIV, है ना। हमने एड्स के बारे में तो सुना ही है, जो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। दिस वायरस कैन पास ऑन to a normal persons from an infected persons by sharing the syringes used for injection drugs, है ना। कभी कभी क्या हो जाता है कि सिरिंज की वजह से एक जो पेशेंट है वो उसको जो सिरिंज से इंजेक्शन लगाया है ना, वही इंजेक्शन दूसरे पेशेंट को जब लगाते हैं, ओके,